Hello students, today we are going to cover the topic of class 10th, nature of roots of quadratic equation. भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे देखते हैं. लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax square plus bx plus c is equal to 0. The roots of equation 1 are given by x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. ये हमारा मेथड किसका था? डायरेक्ट मेथड. दिस इज नोन एज direct method to find the roots of the quadratic equation. So in this term, this b square minus 4ac is known as discriminant. हम इसे बोलते हैं b square minus 4ac को. अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 होते हैं. सो लेट alpha beta be 2 roots of quadratic equation then roots are given by, there are 2 roots ना, तो एक को अल्फ़ा मान लीजिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a and another is beta minus b minus b square minus 4ac by 2a. दोनों अल्फ़ा और बीटा हो जाएंगे. The nature of the roots depend on d, that is your discriminant b square minus 4ac. इसके ऊपर डिपेंड करेगा. केस 1 we take if b square minus 4ac is पॉजिटिव. अगर b square minus 4ac पॉजिटिव है तो आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगे. वन इज़ अल्फ़ा एंड अदर इज़ बीटा. by 2. But so we will write here the roots are real and distinct, or we can say unequal. Distinct word means होता है अलग अलग, तो unequal हो गए, equal नहीं. When we go for case 2, if we say b square minus 4ac is equal to 0, if this value becomes 0, तो alpha value भी minus b by 2a, beta will also become minus 2b by 2. Both roots are equal. So we say the roots are real and equal. Discriminant 0, it means roots are equal. And in case 3, if b square minus 4ac is negative, now if it is negative, then स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? हैज़ नो रियल वैल्यू. इसकी रियल वैल्यू क्यों नहीं होगी? बिकॉज हमने ये भी पढ़ा हुआ है एज, क्योंकि अगर किसी का स्क्वायर होना चाहिए ना, स्क्वायर रूट है तो एज स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव. अगर अंदर वाला नेगेटिव है नंबर और आपने x इज इक्वल टू ये सपोज़ किया हुआ है या d है, तो अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे d स्क्वायर, तो वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए अंदर वाली टर्म. सो दैट्स वाई इफ़ इट इज़ नेगेटिव तो इट हैज़ नो रियल वैल्यू. वी से दैट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे.
तो दिस वाज द टॉपिक एंड व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सपोज इन क्वेश्चन 1 वी से determine the nature of the roots. First example we take 2x square minus 3x plus 5 equal to 0 and determine nature of roots. आपको सिर्फ नेचर बताना है इसमें। तो what we say 2x square minus 3x plus 5 comparing with general quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, we get a is 2, b is minus 3, c is 5, d is equal to b square minus 4ac minus 3 square minus 4 into 2 into 5, 9 minus 5 to the 10 fours are 40, this will become minus 31, which is negative. And if discriminant is negative, what we will write? The given equation has no real roots. Question 2. In next question, we take equation as 2x square minus 7x plus 5 equal to 0. Again comparing, we get a is 2, b is minus 7, c is 5. Again we will compare a 2, b minus 7 and c is equal to 5. Now what we will say, d is b square minus 4ac, जो कि क्या बन जाएगा बेटा, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 49 minus 40 which is equal to 9 positive. So if we want to tell only roots, तो हम कहेंगे so roots are real and distinct. और अब आप फाइंड आउट कर लीजिए, जब रियल और डिस्टिंक्ट है तो रूट्स क्या बनेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने क्या कैलकुलेट किया, 9, तो 9 का स्क्वायर रूट बाई 2a, तो 2 इंटू 2, दिस विल बिकम 4, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 बाई 2 टू ज़ा 4, 7 प्लस 3 10 बाई 4, 7 माइनस 3 4 बाई 4, आंसर इज 5 बाई 2 comma 1. So there are two roots which are real and distinct. Question number 3. Next question, we will take x square plus 4x plus 4 is equal to 0. Again a is 1, b is 4, c is 4. We will calculate discriminant. 4 square minus 4 into a is 1, c is 4. 16 minus 4 4s are 16. Discriminant is 0. So roots are real and equal. We can find it also. X is equal to minus b means minus 4 plus minus square root of b square minus 4ac. Discriminant 0 divided by 2a 2 into 1. Minus 4 plus minus 0 by 2. Minus 4 by 2 is minus 2. तो both roots are minus 2 comma 2 are two equal roots. दो ही रूट्स होंगे और दोनों आपके पास क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. माइनस 4 प्लस 0 या माइनस 4 माइनस 0, बोथ विल बिकम माइनस 4 बाई 2, तो इट इज़ 2. नेक्स्ट द क्वेश्चन which we will face are find the value of k. Find k if roots of, और आपको इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 into 0 are real and equal.
नाउ इज सेइंग फाइंड के इफ़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। और अगर रूट्स रियल एंड इक्वल लेने हो तो हम कहेंगे फॉर दिस d इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b स्क्वायर 5k होल स्क्वायर माइनस 4, हियर a इज़ 1, c इज़ 16, 25k स्क्वायर माइनस 64 is 0. K square will become 64 by 25. This implies K is plus minus 8 by 5. तो either the value of K is 8 by 5 और minus 8 by 5. दोनों वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी से फाइंड वैल्यू ऑफ k, इफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर ये रूट्स गिवन इक्वेशन के रियल हैं और इक्वल है, कब होगा ये, इक्वेशन ले ली 2k + 1 x स्क्वायर माइनस 7k + 2 x एंड प्लस 7k - 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन। और ये कह रहा है इसके रूट्स इक्वल हैं, तो फाइंड भी करो रूट्स, पहले k फाइंड आउट करो फिर रूट्स फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, we will find discriminant. d is equal to b square minus 4ac। यहाँ पर इक्वेशन में b क्या है, माइनस 7k + 2 होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a is 2k + 1, c is 7k - 3। now first of all we will solve it and then put equal to 0। माइनस का स्क्वायर तो प्लस 7k + 2 का होल स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 2ab 28k माइनस 4 इंटू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दिस 7 2 ज़ा 14k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 6k माइनस 3। we got 49k square plus 4 plus 28k minus 14 4 ज़ा 56k square, 7k minus 6k is k, multiply minus 4 minus 4k minus 3 multiply minus 4 plus 12। now we will solve 49k square minus 56k square, this will become minus 7k square, 28k minus 4k is 24k and 12 plus 4 will become 16। this is discriminant। for roots to be real and equal, d must be equal to 0। so d equal to 0 implies minus 7k square 24k plus 16 is equal to 0। taking minus common, we this equation can be written as, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, 7k स्क्वायर माइनस 24k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व आउट करें तो प्रोडक्ट तो माइनस 16 इंटू 7 बनना चाहिए और सम बनाने के लिए माइनस 24 चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को अगर माइनस 28 प्लस 4 लिखते हैं तो योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व आउट। माइनस का 28 प्लस का 4 प्रोडक्ट करेंगे तो इसी के इक्वल आएगा जितना माइनस 16 इंटू 7 होता है। सिमिलरली माइनस 28 इंटू 4, दिस माइनस 16 इक्वल टू 0। 7k कॉमन, k
k minus 4, 4 common k minus 4. This implies 7k plus 4 into k minus 4 is equal to 0. This implies either 7k plus 4 is 0 और k माइनस, दो नंबर इसकी प्रोडक्ट ज़ीरो है तो या तो फर्स्ट वाला ज़ीरो है या सेकेंड वाला ज़ीरो है. k इज इक्वल टू -4/7 और k इज इक्वल टू 4. तो दीज आर द टू आंसर्स. इसने पूछा था कि k की वैल्यू निकालें. अभी इसी का नेक्स्ट पार्ट और रहता है. इसने बोला कि रूट्स हैं रियल एंड इक्वल है. इफ़ ही सेज दैट फाइंड दीज रूट्स ऑल्सो, अगर मुझे ये रूट्स भी फाइंड आउट करने पड़े तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. पुट k इक्वल टू 4. पहले k को 4 डाल दो. योर इक्वेशन विल बिकम 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 तो 9x². 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30x. and 4 7 ज़ा 28 minus 3 25. Your equation will become 9x² minus 30x plus 25. अगर इसे ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है 9x 3x का होल स्क्वायर और 25 क्या बन रहा है 5 का होल स्क्वायर. चेक कीजिए 5 3 ज़ा 15 होता है तो 15 का डबल ही तो है 30. तो दिस इज़ -2 इंटू 3x इंटू 5 a² प्लस b² माइनस 2ab. थ्री एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर. और अगर ये चीज़ होगी तो दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल टू 5/3 कोमा 5. रूट्स तो इक्वल हैं लेकिन वैल्यू क्या आ गई 5/3. सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप वैल्यू पुट करते हैं k इज इक्वल टू -4/7 तो जो आपकी इक्वेशन होगी सॉल्व करने के बाद दैट विल बिकम -1/7x² प्लस 2x माइनस 7. आप k की वैल्यू भी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी. मल्टीप्लाइंग बाय 7 कर दें इक्वेशन को. दिस विल -7 से मल्टीप्लाई कर दो. इक्वेशन विल बिकम x² -7 इंटू 2 -14x माइनस माइनस प्लस 49 इक्वल टू 0. और ये किसका होल स्क्वायर है x - 7 होल स्क्वायर. तो वी गॉट 2 रूट्स 7 and 7 आर इक्वल. तो अब आपके 2 रूट्स आ जाएंगे विच आर इक्वल. तो इस टाइप से हम इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए कंडीशंस में we can get question of this type also. Suppose we are having the statement find the value of k for which equation x² plus 5kx plus 16 is equal to 0 has no real roots. अब इसके कोई भी रियल रूट्स ना हो. अगर मुझे ऐसा करना हो कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं हैं तो बट रियल रूट्स कब नहीं होते. हेयर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ 5k, c इज़ 16. फॉर नो रियल रूट्स d इज़ नेगेटिव. That is b² minus 4ac is negative. This implies 5k whole square minus 4 16 is negative. (64) is negative. 5k का होल स्क्वायर बनेगा 25k² is less than 64. k² is less than 64/25. This implies k² अगर आपका 64/25 से लेस है तो आपके 2 पार्ट्स बन गए. हम इसको कभी भी आपको दोनों मेथड सिखा रही हूँ. जब भी आप रूट्स लेंगे ये मेथड +1 में आता है. बेसिकली k² को ऐसे नहीं कर सकते कि ±8/5. k² को लिखेंगे नाउ मोड k इज़ लेस देन
8/5 और हमारे पास एक दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, लेकिन स्क्वेयरिंग पहले कर ली मोड के। दिस इम्प्लाइज अगर मोड एक्स कभी भी ए से कम हो तो एक्स माइनस ए और ए के बीच में होता है, तो के लाइज बिटवीन -8/5 एंड 8। अगर के की वैल्यू इन दोनों के बीच में है तब तो ठीक है, आपके जो भी वैल्यूज़ इसके बीच में आएंगी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सेकंड मेथड भी है, आप इसे सॉल्व इस तरीके से कीजिए, इसको उस साइड शिफ्ट नहीं करिए। वी वर हैविंग ना 25, इसी इक्वेशन के बाद आ जाइए 25 के स्क्वायर -64 इज़ लेस देन 0 डिवाइड बाई 25 के स्क्वायर -64/25 इज़ लेस। इसके दो फैक्टर बनेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, के माइनस 8/5 के प्लस 8/5। ये कैसे बनेंगे? क्योंकि हमने कहा के स्क्वायर, तो 64/25 को आप क्या लिख सकते हैं 8/5 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? इफ़ वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। तो आपके पास ये मेथड इजी रहेगा। आपको अगर मोड नहीं समझ आता डायरेक्ट तो क्या करेंगे अब बेटा, दिस इम्प्लाइज के माइनस 8/5 नेगेटिव है तो के प्लस 8/5 पॉजिटिव होना चाहिए, और या ऐसा होना चाहिए के माइनस 8/5 पॉजिटिव है तो के प्लस 8/5 नेगेटिव। दोनों टर्म साइड बाय साइड यूज़ करेंगे। यहाँ से आ जाएगा के इज़ लेस देन 8/5 और यहाँ से आएगा के इज़ ग्रेटर देन माइनस, यहाँ बनेगा के इज़ ग्रेटर देन 8/5 और के इज़ लेस देन -8/5। अब आपको क्या करना है, ज़ीरो लेकर और एक बार बस ये पॉइंट प्लॉट कर दो, जितना 8/5 इधर है उधर ही -8/5 है। ये कह रहा है के की वैल्यू 8/5 से ग्रेटर है, दूसरे में कह रहा है के की वैल्यू -8/5 से कम है, तो ये तो कॉमन पोर्शन ही नहीं देता। नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि के तो सिंगल है, एक ही है, या तो के इधर होगा या इधर होगा, ऐसा कैसे हो सकता है एक के इधर भी हो जाए और उधर भी हो जाए। सिमिलरली इसमें देखते हैं -8/5, के इज़ लेस देन 8/5, 8/5 से तो कम है, के इज़ ग्रेटर देन -8/5, -8/5 से ज़्यादा। डबल एरिया कहाँ पर है आपका शेडेड, डबल इज़ फ्रॉम -8/5 to 8/5। दिस इम्प्लाइज के लाइज फ्रॉम -8/5 to 8/5। के -8/5 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू और 8/5 से लेस होनी चाहिए। दिस इज़ द आंसर। तो इस टाइप से आप के की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स और आप इसे सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। Next, last question we will discuss. He is saying if AD is not equal to BC, then prove that A square plus B square x square plus twice of AC plus BD into x plus C square plus D square is equal to 0 has no real roots। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में, व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज, इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC then prove that A square plus B square x square plus twice of AC plus BD plus C square plus D square has no real roots। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। what we will do, अगर इसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो हम सॉल्व आउट करके देखेंगे कि ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। दिस थिंग वी हैव टू सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर बी कौन है, ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD, तो ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
दिस विल बिकम 2 स्क्वायर इज़ 4 और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd माइनस 4 इंटू इन दोनों ब्रैकेट की प्रोडक्ट्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8acbd माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। ये आपकी टर्म बन गई। हमने क्या किया बेटा, सारी ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट। वी आर लेफ्ट विथ 8acbd माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर। अभी अगर एक चीज़ चेक करें, -4 कॉमन रखें तो अंदर टर्म क्या बचती है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2acbd को बी सी ए डी लिख सकते हैं। बात तो सेम है, यहाँ भी ए सी बी और डी का प्रोडक्ट था, मैंने इसके जैसा बना दिया बी सी ए ओ डी। अब अगर ध्यान से देखें तो बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू ए डी, दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। नाउ गिवन क्या था, ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, गिवन ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। इफ़ ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी तो ये पॉजिटिव रहने वाला है, ज़ीरो तो बनेगा नहीं। और किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर है, ए डी अगर बी सी के इक्वल नहीं है तो बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स बी सी माइनस ए डी स्क्वायर इज़ पॉजिटिव। और अगर -4 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव। और जब नेगेटिव होता है तो दिस इम्प्लाइज गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, बट ये नेगेटिव बन नहीं सकता, किसी भी टर्म का होल स्क्वायर है। ज़ीरो आता तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाता, इक्वल रूट्स आ जाते, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पर इसने अनइक्वल दिया था, इसी वजह से ही ये रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव प्रूफ दैट। ओके।